بھارتی غرور کو خاک میں ملانے کا دن آپریشن سوئفٹ ریڈار میں آج کے دن سال مکمل ہو گیا۔ پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا۔ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک بری نگاہ کا انجام کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی فوجی قیادت، پاکستان کے شاہین، انہوں نے جس زبردست طریقے سے آج ہندوستان کو جواب دیا، وہ ہندوستان کو مدتوں یاد رہے گا۔ اس تاریخی دن کو اس لیے بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے فخر ہے۔ آج کے یہ جو تینوں ایونٹس میں نے آپ کو بتائے، یہ پاکستانی قوم کی فخر کی علامت ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں اپنی جو تمام لوگ جس میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وزیر بھارتی غرور کو خاک میں ملانے کا دن آپریشن سوئفٹ ریڈار کے آج 3 سال مکمل۔ پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا، چائے بھی پلائی، جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس بھارت کے حوالے بھی کر دیا۔ بھارت کو ہمیشہ فینٹاسٹک ٹی یاد رہے گی۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے۔ میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ 3 سال قبل 27 فروری کو بالاکوٹ میں رات کے اندھیرے میں بھارتی جارحیت کا شاہینوں نے دن کے اجالے میں دندان شکن جواب دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی طیارہ مار گرایا۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن نے تباہ ہونے والے جنگی جہاز سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی اور پاکستانی حدود میں گرا۔ پاکستان کے شاہینوں نے پائلٹ کو چائے پلائی اور فینٹاسٹک ٹی کے نام سے مشہور ہوئی، جبکہ پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس مارکے سے منسوب پاک فضائیہ کی جنگی گیلری آپریشن سوئفٹ ریڈار میں ابھینندن کے زیر استعمال یونیفارم اور جنگی ہوابازی میں استعمال ہونے والا سامان دشمن کی پسپائی کی داستان سنا رہا ہے۔ گیلری کی ایک دیوار پر ابھینندن کے طیارے کو مار گرانے والے ونگ کمانڈر نعمان علی خان، بھارت کے دوسرے جہاز کو مار گرانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی، جبکہ بھارت کے خلاف اہم مشن میں شامل گروپ کیپٹن فہیم خان کی تصویر آویزاں ہیں۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ کی جرات کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جنگوں کے درمیان پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دشمن ملک کے ہوا بازوں کو ناکوں، چنے چبانے اور انہیں کاری ضرب لگانے کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں۔ بھارت کو بتا دیا تھا کہ جب 27 فروری 2019 کو اس نے حملے کا انتخاب کیا۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر یقین رکھتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ قوم و ملک کی سلامتی کے لیے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں۔ بھارت کو بتا دیا تھا کہ جب 27 فروری 2019 کو اس نے حملے کا انتخاب کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریڈار کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ناکام بھارتی جارحیت کا پاک افواج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ پاک آرمی نے بھارتی فورسز کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج کا دن مادری وطن کی حفاظت کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلحہ یا تعداد نہیں، قوم، عزم اور پیشہ ورانہ تیاری سے کامیابی ملتی ہے۔ پاک افواج نے بھارتی ناکام مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان زندہ باد۔
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से पाक फिजाइया का नारा जारी। पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 बरस मुकम्मल। मिनी नगमे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हीरोज को खराजे तहसीन पेश किया गया। नगमा मुल्क के माया नाज गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर दिया था। वतन तू चाहे हमारी तुझ पे ना जाएगी, तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं मुश्किल भी घबराएगी। आजमाने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सतरंग है। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सतरंग है। आजमाने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। फवाद चौधरी ने कहा, 3 साल पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड का तारीखी मार्का वकूफ पजीर हुआ। मैं खुशकिस्मत हूँ इन तमाम फैसला साजी के मरहले का हिस्सा रहा। हमारे जानबाजों ने जिस तरह पाकिस्तानियों का सर फखर से ऊंचा किया वो तारीख का हिस्सा है। वजीर आजम और फौजी कमांडर ने जिस तरह क़यादत दी वो कहानी सुनने से ताल्लुक रखती है। वज़ीर आला पंजाब का भारतीय तैयारे गिराने के 3 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। उस्मान मुस्तार ने कहा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए। कौम पाक फिजाइया के शाहीनों की शुजाअत को खराजे तहसीन पेश करती है। यह दिन पाकिस्तान के फिजाई दिफा की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उस्मान मुस्तार ने कहा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन बाप है। पाक फिजाइया के शाहीनों ने जुर्रत की नई तारीख रकम की है। 27 फरवरी का दिन भारत की निदामत के लिए के सिवा कुछ और नहीं है। जंगी तैयारे तबाह करके पाकिस्तान ने दुश्मन को सरप्राइज दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को सलाम पेश करते हैं। लाहौर के कजाफ स्टेडियम में PSL 7 सीजन के 7 मेगा इवेंट में आज फाइनल मैच खेला जाएगा। ट्रॉफी के लिए क्रिकेट की जंग मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होगी। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। क्रिकेट दीवाने आज के दिन मैच पर क्या कहते हैं और कैसी तैयारियां हैं, इस पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद खान से। जी उबैद खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, PSL सीजन 7 के मेगा इवेंट के अंदर आज ट्रॉफी के लिए बड़ी क्रिकेट टक्कर होगी। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान छक्कों चौकों की बरसात जहां पर मिलेगी, वहीं पर जोर का जोड़ भी पड़ेगा। शाम 7:30 पर बाकायदा मैच का आगाज होगा। और कल बाकायदा रेस्ट का दिन था, मगर रेस्ट के दिन पर भी दोनों टीमों ने भरपूर तौर पर प्रैक्टिस की थी और फुल फॉर्म के अंदर दोनों टीमें नजर आई थी। और आज का मैच जो है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जब शुरू होगा तो देखना यह होगा कि किस तरह से जो क्रिकेट शायकीन है उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के अंदर कसाबी स्टेडियम की रौनकें बहाल करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए जो क्रिकेट शायकीन है सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पर अगाए बगाए पहुंच रहे हैं। क्या कहते हैं क्रिकेट दीवाने, बात करते हैं। अच्छा सर, कहाँ से आए, क्या पैगाम देना चाहते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप? मैं मैनचेस्टर से आया हूँ स्पेशली ये मैच देखने के लिए, लेकिन अभी टिकट नहीं मिल रहा। हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में पुरअमन मुल्क ये पूरी दुनिया में इसका जाएगा, लोगों मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। मैनचेस्टर से बकायदा मैच देखने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इनके साथ ही आया हूँ, ये मैच जेलम से आए उनको लेके, तो हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर कलंदर को। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर ही जीतेगी। क्या हो सकता है आज, किस तरह का मुकाबला, किस तरह की टक्कर देखने में मिलेगी? कौन सी टीम फेवरेट है? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, आपकी कौन सी फेवरेट है? लाहौर। लेकिन कोई दीवाना है लाहौर कलंदर का तो कोई दीवाना दिखाई देता है मुल्तान सुल्तान का। और जिस तरह से परफॉर्म देखा गया है और मादी के अंदर जो रिकॉर्ड रहा है
बाकायदा तौर पर दोनों टीमों का, और देखने में तो जो यही महसूस होता है बाकायदा कि बड़ा दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होगा। और यहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिन लोगों ने टिकटें ले ली हैं उनको बाकायदा ये पैगाम दिया जा रहा है कि अपना वैक्सीनेटेड कार्ड और अपना कौमी शनाख्ती कार्ड भी अपने हमरा जरूर लेकर आएं। शाम 5 बजे के करीब जो दोनों टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी और 7 बजे टॉस होगा। 7:30 पर आज के खेल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। क्रिकेट दीवानों के सर के ऊपर जुनून सवार है और तवक्का जाहिर की जा रही है कि आज एक बड़ा और मेगा इवेंट के साथ साथ एक बड़ा खेल देखने में मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया उबैद खान अपडेट करने के लिए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होने वाले फाइनल मैच के मौके पर शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। फाइनल मैच के मौके पर शायकीन क्रिकेट सिक्योरिटी इंतजामात को कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोज न्यूज आजम बाजवा से। जी आजम बाजवा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए PSL 7 के हवाले से तो आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान जो है जिंदा दिलाने लाहौर को कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लाहौरिये जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं और आज के मैच के हवाले से जो है वो वक्त से पहले ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शाम का इंतजार कर रहे हैं कि शाम हो और ये लोग जो हैं वो चौकों और छक्कों की बरसात जो है वो देख सके। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। सर कहाँ से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, लाहौर से। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज के मैच के हवाले से सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की बात करूं कि ऐसी सिक्योरिटी पहले हमने कभी नहीं देखी और मैं ये 7वां PSL का सीजन है। आप हैरान होंगे कि मैंने PSL की ओपनिंग और फाइनल ये दुबई में हुए तो हम दुबई में देखते रहे और आज हम कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। आज शाहीन अफरीदी को हम सपोर्ट करेंगे और लाहौर को सपोर्ट करेंगे। जी क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है, कैसे देखते हैं इसको? सर बहुत अच्छा लगता है। देखिए पहले हम लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाते थे, आज हमें हजारों में टिकट लेके अपने ही मुल्क को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई है तो इस हवाले से ये बहुत खुश है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो आज के मैच के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर आबद खान के मुताबिक आज के इस मैच के मौका पर जो है लाहौर पुलिस की 8000 से जायद जो है अफसरानों अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। खिलाड़ियों की क़यामगाह से लेकर कज़ाफी स्टेडियम तक जो है वो इस मुतलका इलाके में सर्च एंड कोमिंग स्वीप ऑपरेशन का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से जारी रहा है। तो ओवरऑल आज के इस फाइनल के मौका पर जो है शायकीन क्रिकेट की आमद का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पर लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी है। जी बहुत शुक्रिया आजम बाजवा अपडेट करने के लिए। उस्मान बुज़दार का PSL 7 का फाइनल खेलने वाली टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि शायकीन क्रिकेट फाइनल में शानदार खेल से महसूस होंगे। कोई भी टीम जीते फतह खेलों में से मोहब्बत करने वालों की होगी। फाइनल मैच के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। विफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो गई। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश। लॉन्ग मार्च के रूट्स पर पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स की बहार। बदीन में लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप कायम कर दिए गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च रात गए बदीन पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। विफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश हैं। लॉन्ग मार्च के रूट्स पर पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स की बहार है। बदीन में लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप भी कायम कर दिए गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च रात गए तक बदीन पहुंचेगा। इसी हवाले से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत मुगल। जी लियाकत मुगल, अपडेट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही यार इसकी। वो
वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश। लॉन्ग मार्च के रूट्स पर पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स की बहार। बदीन में लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप कायम कर दिए गए। बिलावल भुट्टो की आदत में लॉन्ग मार्च रात के बदीन पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश हैं। लॉन्ग मार्च के रूट्स पर पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स की बहार है। बदीन में लॉन्ग मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप कायम। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च रात के बदीन पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। इसी हवाले से हमें दोबारा ज्वाइन किया लियाकत मुगल ने। जी लियाकत मुगल, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। आज 27 फरवरी को मज़ार कायद से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 35 शहरों से होता हुआ ये काफिला जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। आज जो है कराची से जो है बिलावल भुट्टो अपने खिताब से ये लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मलीर नेशनल हाईवे से होते हुए ये सजावल जाएंगे। सजावल से ठट्ठा जाएंगे। ठट्ठा में भी खिताब करेंगे। फिर उसके बाद मातली में खिताब किया जाएगा। मातली के बाद जो है वो वहां पर बदीन में जो काफिले के लोग हैं उनको स्टे दिया जाएगा। कल फिर हैदराबाद में खिताब करेंगे। इसके बाद जो है सरकंड होते हुए जो है मोरो जाएंगे। मोरो के अंदर जो है वो फिर स्टे दिया जाएगा और वहां से जो काफिला शुरू होगा फिर जाकर खैरपुर के अंदर जो है बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। उसके बाद सखर में जो है तमाम जो काफिले के शरीक लोग होंगे उनको जो है स्टे दिया जाएगा। इसके बाद काफिला सखर से रवाना होगा और रहीम यार खां पहुंचेगा और रहीम यार खान के अंदर जो है वो रास्ते में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खिताब करते जाएंगे। उन्होंने इसके साथ साथ जो है वो साहिवाल फिर पहुंचेगा जुलूस और जुलूस के बाद जो है लाहौर में स्टे किया जाएगा। लाहौर के बाद जो है फिर पिंडी की तरफ जो जाएगा। लियाकत मुगल, ये बताइएगा कि तैयारियां कैसी की गई हैं? देखिए जी, तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। एक कंटेनर जो है जिसके ऊपर स्टेज बनाया गया है और कंटेनर जो है और जुलूस के साथ चलता रहेगा। जहां भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है रास्ते में जैसे मलीर कायदाबाद पहुंचेंगे वहां खिताब करेंगे। गग्गर फाटक, दाबाजी, गारो रास्ते में जो है वो खिताब करते जाएंगे। तमाम तैयारियां जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त कारकुनों की जो आमद का सिलसिला मज़ार कायद वो जारी है। लोग गाड़ियों में आ रहे हैं क्योंकि काफिला जो है वो गाड़ियों पैदल कम जाएगा लेकिन गाड़ियां ज्यादा जाएंगी, इसलिए लोग जो है गाड़ियों को सजाकर पीपल्स पार्टी के परचम लगाए हुए हैं उनके ऊपर और जो गाड़ियां हैं उनको भी जो है परचमों से सजाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी ने एक व्हाइट पेपर भी जारी किया। उसके अंदर 38 मुतालबात उन्होंने रखे हैं कि जिसके अंदर जो है वो मुतालबात जो है हमारे जो है लॉन्ग मार्च पे इख्तिताम तक हुकूमत अगर पूरे नहीं करेगी तो फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत मुगल अपडेट करने के लिए। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात और मरकजी शाहराओं पार्टी परचम और बैनर्स आवेजा हो गए। कंबर शाह हुसैन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां। सजावल में भी मैन शाहराओं को पीपल्स पार्टी बैनर्स और झंडों से सजा दिया गया। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। खैरपुर में मुख्तलिफ मकामात और मरकजी शाहराओं पार्टी परचमों और बैनर्स आवेजा हो गए। खैरपुर कंबर शाह हुसैन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां। सजावल में भी मैन शाहराओं को पीपल्स पार्टी बैनर्स और झंडों से सजा दिया गया। सजावल में भी पीपल्स पार्टी के मार्च के इस्तकबाल के लिए जयाले पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 मकामात पर अलग अलग इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब और रास्तों की सफाई सुथराई। सजावल में भी पीपल्स पार्टी के मार्च के इस्तकबाल के लिए जयाले पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 मकामात पर अलग अलग इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब और रास्तों की सफाई सुथराई।
पीटीआई सिंध हुकूक मार्च के शुरका का सखर से शिकारपुर के लिए रवाना। वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मार्च की शिकारपुर रवाना हो गई। सिंध हुकूक मार्च के शुरका जैकबाबाद पहुंचेंगे। जलसा आम होगा। मार्च के शुरका शिकारपुर से होते हुए कश्मोर रवाना होंगे। पीटीआई सिंध हुकूक मार्च के शुरका का सखर से शिकारपुर के लिए रवाना। वफाकी वजीर अली जैदी की क़यादत में 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल मार्च शिकारपुर रवाना हो गई। सिंध हुकूक मार्च के शुरका जैकबाबाद पहुंचेंगे। जलसा आम होगा। मार्च के शुरका शिकारपुर से होते हुए कश्मोर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च के हवाले से बयान। कमो शहीद से होने वाला सिंध हुकूक मार्च सकर पहुंच चुका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रास्ते में जगह जगह मार्च का इस्तकबाल किया गया। सिंध के बाशूर अवाम ने कैदुल मिसाल इस्तकबाल किया। पीपी की 15 साला हुक्मरानी से लोग तंग आ चुके हैं। सिंध के लोग मुतबादिल क़यादत की तलाश में हैं। हम जमहूरी रवायत की पासदारी करने वाले जमहूरी लोग हैं। अगर आप अपना नुक्ता नज़र पंजाब में बयान करते हैं तो हम भी सिंध में आ सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च के हवाले से बयान। कमो शहीद से शुरू होने वाला सिंध हुकूक मार्च सखर पहुंच चुका। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रास्ते में जगह जगह मार्च का इस्तकबाल किया। सिंध के बाशऊर अवाम ने कैदुल मिसाल इस्तकबाल किया। पीपी की 15 साला हुक्मरानी से लोग तंग आ चुके हैं। सिंध के लोग मुतबादिल क़यादत की तलाश में हैं। हम जमहूरी रवायत की पासदारी के लिए जमहूरी लोग हैं। अगर आप अपना नुक्ता नज़र पंजाब में बयान करते हैं तो हम भी सिंध आ सकते हैं। साबिक एमएनए सैयद काजम अली शाह साहब, एमएनएज, हमारी एमपीए खवातीन जो कराची से तशरीफ लाई हैं, सिंध की तंजीम और वजीराबाद लकी तालका के गयूर बाकिरदार और बाअसूल बासियों, अस्सलामु अलैकुम। यहां स्टेज पर आरिफ खान महार भी तशरीफ फरमा है, जो 2 मरतबा आपकी हिमायत से जिला शिकारपुर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम मुंतखब हुए हैं। यहां स्टेज पर शहरयार खान महर भी मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असेंबली, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाप का बड़ा बेटा होने का सिंध असेंबली में सबूत दिया है शहरयार खान महर ने। जब जाबिर के सामने बोलने की कोई जुर्रत नहीं करता तो शहरयार खान महर तुम्हारे हकूक की लड़ाई सिंध असेंबली में लड़ता है। बताओ वजीराबाद वालों, बताओ, एक सुनो मेरी बात, वजीराबाद वाले बताओ, शहरयार खान तुम्हारा मुकदमा लड़ता है? इस वक्त मजदूर को बचाना है, किसान को बचाना है, किसान को बचाना है, साफत को बचाना है, अदालत को बचाना है, बिलावल को लाना है, बिलावल को लाना है, बिलावल को लाना है, न्याजी को भगाना है, न्याजी। नारा भुट्टो। कौन कौन करेगा तकरीर? मेरी कैब गई। मुर्तजाबाद से स्टार्ट करें। मुर्तजाबाद तकरीर वो करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध मुर्तजा वहाब साहब से क्या है वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। कह रहे हैं ना
और मोहब्बत का जो रिश्ता बांधा है उसकी तजदीद के लिए मैं आपके दौलत कदे पर हाजिर हुआ हूं। वजीराबाद के लोगों, आज 27 फरवरी है। मैं दो पैगाम देना चाहता हूं। एक पैगाम नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं और दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है, आज से 3 साल पहले तुमने जारियत की और पाकिस्तान की सरहदों पर दाखिल होकर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक जागती कौम थी, एक खुददार वजीर आजम था। 26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया और अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। सुन लो, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम है जो तुम्हारी यलगार से घबराता नहीं है, उसके अंदर ईमान की कुव्वत है। सोचकर फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाना, क्योंकि यहां आज वो नहीं है जो तुम्हें साड़ियों के तोहफे पेश करें। और मेरा दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए है। सुना है कि वो आज कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। खुशी से आए और क्या कहने चले हैं कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। जरूर लो, जरूर लो, हम हिसाब देने के पाबंद हैं। आप हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। आप एहतसाब करें, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। लेकिन जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो, तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। बताओ, 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है, सदारत भी तुम्हारे पास थी, वजारत उज़्मा भी तुम्हारे पास थी, सिंध का वजीर आला भी तुम्हारा था, सिंध की कॉरपोरेशंस भी तुम्हारे पास थी, सिंध का हर तालका तुम्हारे पास था। शाह महमूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिंध हकूक़ मार्च से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि 27 फरवरी है, मैं 2 बातें पैगाम देना चाहता हूँ। एक पैगाम नरेंद्र मोदी को और एक बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूँ। 26 को हमने हमला किया, उन्होंने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया, अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। बिलावल भुट्टो के बारे में कहा कि सुना है कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। सुना है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान से हिसाब लेने के लिए निकले हैं, आए और आकर हिसाब लें। हमसे 3 साल का हिसाब लेने आ रहे हैं, मैं आज तुमसे 15 साल का हिसाब लेने सिंध में आया हूं। खून में शामिल है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।